Opposition's notice for no confidence motion against the Lok Sabha Speaker Om Birla may face rejection due to procedural shortcomings. The notice was submitted on February 9th, 2026, seems to have some flaws that could lead to rejection as per the rules, according to Lok Sabha Secretariat sources. The notice reportedly mentions February 2025 events 4 times, which could have led to the rejection under the parliamentary rules. However, Speaker Om Birla directed the Secretariat to allow the rectification of deficiencies instead of rejecting the notice outright. He ordered expeditious action in accordance with the prescribed rules. But the revised notice will be listed after the commencement of the second phase of the budget session. तो वह भी अच्छे से जानते हैं कि स्पीकर सही है। अगर नो कॉन्फिडेंस किसी पर कांग्रेस को सबमिट करना चाहिए तो उन्हें सबसे पहले राहुल गांधी पे सबमिट करना चाहिए, क्योंकि इनको ये भी नहीं पता है कि स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्पीकर पर हटाने का मोशन लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर नहीं होता, इस पर मोशन ऑफ रिमूवल होता है। अगर ये बाहर आके भाषा ये बोल रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो पहले तो किस लेवल का इनका दिमाग है, इस पर भी सोचना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात है कि राहुल गांधी एक कागज ऑथेंटिकेट करते हैं संसद में, और आज जब बेंगविन ने इस बात को साफ कह दिया कि हमने ऐसी कोई बुक ही पब्लिश नहीं की है, तो सबसे गलत और सबसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो राहुल गांधी है। कांग्रेस जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएगी तब तक कांग्रेस का भविष्य में कुछ नहीं होने वाला। Upon resubmission, the notice will be examined properly as per the rules. The notice of the no confidence motion against the speaker was submitted by Congress, and 118 MPs from Congress, RJD, SP, DMK and other parties signed the notice. But the TMC MPs did not sign the opposition's notice. कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे, लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो, एंड द चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है, आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, then there is always a room to move no confidence. We have no problem. The notice cites 4 incidents, including Rahul Gandhi allegedly not being allowed to speak during the motion of thanks to the president's address. The dispute stems from Rahul Gandhi attempting to refer to former Army Chief General M.M. Narawane's unpublished memoir on the 2020 India-China standoff. Speaker had ruled that unpublished literature cannot be cited in the House. In a fresh escalation of tensions in the Parliament, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has alleged that Congress MPs misbehaved with the Lok Sabha Speaker Om Birla inside the chamber. Rijiju claimed that the members of the Congress party not only threatened but also abused the Speaker, calling the incident unprecedented in the history of the parliamentary conduct. He further accused the opposition of repeatedly disobeying the Speaker's directions inside the House and then alleging bias against him. He further accused the opposition of repeatedly disobeying the Speaker's directions inside the House and then alleging bias against him. स्पीकर साहब के चैम्बर में जा कर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना,
और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए, जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर राहुल गांधी ने किन्होंने किया सर? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीज जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, वहां पे कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। ऐसा होता है क्या?